نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایران کے بارے میں پیشگوئی جو حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کی گئی پیشگوئی آج بھی حرف بہ حرف پوری ہوتی نظر آئے گی؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس وقت دنیا پر روم اور فارس جیسی عظیم سلطنتوں کا راج تھا، اس وقت ایک شخص نے ایسی باتیں کہیں جنہیں سن کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج وہی الفاظ وقت کے آئینے میں حقیقت بن کر سامنے آ چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایران کے بارے میں کی گئی اس حیران کن پیشگوئی کی جو لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ ایران جو قدیم زمانے میں فارس کے نام سے جانا جاتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ اس کی عظمت اور شان کا مقابلہ کوئی بھی سلطنت نہیں کر سکتی تھی اور اسے شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ فارس کی عظمت اور شان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا۔ اس کی فوجیں اتنی طاقتور تھیں کہ انہوں نے رومی سلطنت کو بھی کئی بار زیر کیا۔ فارس کے بادشاہوں کی دولت اور شان و شوکت کی کہانیاں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن پھر ایک لمحہ آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بصیرت سے اس طاقتور سلطنت کے زوال کی پیشگوئی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشگوئی کیوں کی اور پھر فارس یعنی موجودہ ایران کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے اس حیرت انگیز سفر پر چلتے ہیں جو ہمیں تاریخ کے اہم ترین واقعات سے روشناس کروائے گا۔ یہ 7ویں صدی کا ذکر ہے جب صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ یہ خطوط محض دعوتی پیغام نہیں تھے بلکہ انسانیت کی نجات کا راستہ دکھانے والے تاریخی دستاویزات تھے۔ انہی میں سے خط فارس کے شہنشاہ یعنی کسریٰ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا۔ یہ خط لے جانے کی سعادت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ اس وقت کسریٰ ایک وسیع و عریض سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا جس نے 38 سال تک حکومت کی اور ساسانی خاندان کی شان و شوکت کو بلندیوں پر پہنچایا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے رومی سلطنت کو بھی کئی بار شکست دی۔ اگرچہ بعد میں اسے بازنطینی بادشاہ ہرقل سے شکست ہوئی، پھر بھی اس کی سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر جزیرۃ العرب کے مشرقی اور جنوبی حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں یمن بھی تقریباً 50 سال تک اسی کے زیر اثر رہا۔ فارس کی تہذیب و ثقافت کو اس دور میں دنیا کی اعلیٰ ترین تہذیب سمجھا جاتا تھا۔ ان کے محلات، باغات، فنون لطیفہ اور سائنسی ترقی کے قصے مشہور تھے۔ خسرو پرویز جس کی بادشاہت اپنے وقت کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنت تھی، اس کا غرور آسمان کی بلندیوں تک چھوتا تھا۔ اس کے محلات میں سونے چاندی کی بے شمار دولت تھی۔ اس کے پاس ہزاروں غلام، لونڈیاں اور خدمتگار تھے۔ خسرو پرویز کا نام سن کر ہی دشمنوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھیں۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھتا تھا اور کسی کو اپنے برابر تصور نہیں کرتا تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے علماء، شعراء اور فلسفی موجود رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسریٰ کو جو خط لکھوایا اس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ سربراہ فارس کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کیونکہ میں تمام عالم کے لیے اللہ کا رسول ہوں، تاکہ میں زندہ لوگوں کو اللہ سے ڈراؤں اور کافروں پر اتمام حجت ہو۔ اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اگر تم نے انکار کیا تو مجوسیوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خسرو پرویز کو ایک خط بھیجا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی۔ یہ خط آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے محبت اور امن کا پیغام تھا۔ یہ خط سونے اور مشک سے لکھا گیا تھا اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوئی تھی، مگر جب یہ خط خسرو پرویز تک پہنچا تو اس نے انتہائی توہین آمیز رویہ اپنایا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ جیسے اس نے خط کو پڑھا اس کا غصہ بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خط میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس کے نام سے پہلے لکھا گیا تھا، جو اس کی غرور بھری فطرت کو گوارا نہ ہوا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسی گستاخی ہے کہ ایک عرب کا باشندہ جو اس کی نظر میں ایک معمولی شخص تھا، اس جیسے عظیم بادشاہ کو خط لکھ رہا ہے، اور وہ بھی اپنا نام پہلے لکھ کر۔ اس نے خط کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیا اور تکبر سے بولا،
उस शख्स की ये मजाल कि वो मुझे खत लिखे, हालांकि वो तो मेरा गुलाम है। उसने खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दरबार में मौजूद तमाम लोगों के सामने उसकी बेहुरमती की। फिर उसने फौरन हुक्म दिया कि अरब में जाकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह उसने मेरे खत को फाड़ा है, उसी तरह उसकी सल्तनत भी टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ये एक पेशन गोई थी जो बहुत जल्द हकीकत का रूप धारने वाली थी। ये अल्फाज महज गुस्से में कही गई बातें नहीं थीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वही के मुताबिक एक हतमी ऐलान था। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना वापस आकर ये वाक़या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त बद्दुआ फरमाई, खुदा करे वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये बद्दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और बहुत जल्द उसका असर जाहिर होने लगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। कसरा ने यमन में अपने गवर्नर बाजान को लिखा कि वो फौरन 2 मजबूत आदमी यसरब यानी मदीना भेजे ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके पास लाएं। बाजान ने कार और बाविया नामी 2 पहलवान नुमा सिपाही मदीना रवाना किए। उन्हें एक खत भी दिया। उस खत में लिखा था कि अगर आप खुशी से कसरा के पास चले जाएं तो अच्छा है, वरना कसरा आपकी कौम को हलाक कर देगा और मुल्क को भी तबाह कर डालेगा। ये दोनों कासिद जब मदीना की तरफ रवाना हुए तो उन्हें पूरा यकीन था कि वो आसानी से अपना मकसद हासिल कर लेंगे। ये दोनों कासिद जब मदीना पहुंचकर दरबार नबूवत में हाजिर हुए, जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो उन पर रोब तारी हो गया और वो कांपने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर नूर था जो देखने वाले को मरूब कर देता था। उन्होंने खत पेश किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले उसे पढ़ा और फिर उन्हें इस्लाम की दावत दी। फिर आपने फरमाया, तुम अपने आका को जाकर बतला दो, मेरे रब ने आज रात कसरा को 7 घड़ी गए हलाक कर डाला है। अल्लाह ताला ने उस पर उसके बेटे को मुसल्लत कर दिया था। ये सुनकर दोनों कासिद हैरान रह गए, क्योंकि ये बात उन्हें अजीब लगी। ये मंगल की रात 10 जमादुल अव्वल 7 हिजरी बमुताबिक 628 ईस्वी का वाक़या था। ये खबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की वही के जरिए मिली थी। कासिदों को जब ये बताया गया तो वो यकीन न कर सके। उन्होंने सोचा ये कैसे मुमकिन है कि इतनी दूर बैठे हुए आपको ये खबर मिल गई। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एतमाद से फरमाया, जाओ और जाकर अपने मालिक को बतला दो और उससे ये भी कह देना कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जहां तक कसरा पहुंच चुका है, बल्कि उससे भी आगे, वहां जाकर रुकेगी जिससे आगे ऊंट और घोड़े के कदम जा ही नहीं सकते। और ये भी कह देना कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारा मुल्क तुम्हारे पास रहेगा और तुम बदस्तूर अपनी कौम के हाकिम बने रहोगे। ये पैगाम लेकर वो दोनों वापस यमन रवाना हुए। अभी तक बाजान को कसरा के कत्ल की खबर नहीं मिली थी। जब कासिदों ने उसे ये खबर सुनाई तो वह हैरान रह गया। उन्हें यकीन न आया कि ये कैसे मुमकिन है। कुछ दिन बाद शेरोविया का खत भी पहुंच गया, जिसमें उसने अपने बाप के कत्ल और अपनी बादशाहत का ऐलान किया। उस खत में ये हिदायत भी थी कि जिस शख्स ने यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मेरे बाप ने तुम्हें लिखा था, उसे ताहुक्म सानी अपने हाल पर रहने देना। लेकिन बाजान ने इस हुक्म की तामील नहीं की, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई देखकर उसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। उसने देखा कि जो पेशगोई आपने की थी वो बिल्कुल ठीक निकली। इसके साथ ही यमन के बहुत से उमरा, हुक्काम और अवाम की एक बड़ी तादाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब यह खबर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली तो आप बहुत खुश हुए और उन्हें ज़ुन्नूरून का लक़ब दिया। एक और हैरत अंगेज बात यह कि खतीब बगदाद ने अपनी तारीख में लिखा कि कसरा ने खत के टुकड़े हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु को दिए थे। और फिर मई 1963 में बैरूत से ये खबर आई कि लबनान के साबिक वजीर खारजा हेनरी फिरौन के खानदानी जखीरे में वसली मकतूब नबवी जो कसरा के नाम से था दरियाफ्त हुआ है। ये एक और नाकाबिल यकीन तस्दीक थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह खत आज भी महफूज है और इस्लाम की सदाकत की गवाही देता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक लम्हा ठहर कर सोचिए कि उस वक्त किसी ने ये तस्वुर भी नहीं किया था कि फारस जैसी अजीम सल्तनत जिसकी ताकत के चर्चे दुनिया भर में थे, कैसे मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकती है। फारस की फौज लाखों की तादाद में थी। उनके पास जदीद तरीन हथियार थे, जंगी हाथी थे, तजर्बाकार जर्नैल थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और वसाइल भी महदूद थे, लेकिन उनके पास ईमान की ताकत थी और अल्लाह की मदद थी। अब सवाल ये कि उस पेशगोई ने हकीकत का रूप कैसे धारा और वो कौन से हालात थे जिन्होंने फारस को, उस ताकतवर सल्तनत को जवाल की तरफ धकेल दिया।
नाजरीन, बज़ाहिर खुसरो परवेज की सल्तनत मजबूत और नाकाबिल तस्खीर नजर आती थी, मगर उसके अंदरूनी मसाइल पहले ही सर उठा रहे थे। खुसरो परवेज की हुक्मरानी के दौरान सल्तनत के अंदर इख्तिदार की कशमकश उरूज पर थी। दरबार में साजिशें हो रही थी, उमरा आपस में लड़ रहे थे, अवाम में बेचैनी थी, टैक्सों की ज्यादती से लोग परेशान थे। ताकत के लालच में उसके बेटे शेरोविया ने अपने ही 18 भाइयों को कत्ल करके इख्तिदार पर कब्जा कर लिया और खुसरो परवेज को कैद कर दिया। ये वाकया फारस की तारीख में एक सियाह बाब था। कुछ ही अरसे बाद खुसरो परवेज कैद में इंतकाल कर गया। कहा जाता है कि उसे कैद में भूखा प्यासा रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर उसके बेटे शेरोविया की किस्मत ज्यादा देर वफा न कर सकी और वो भी बीमारी का शिकार होकर महज 6 माह बाद मर गया। उसके बाद फारस की हुक्मरानी एक के बाद एक कई हुक्मरानों ने संभाली, मगर कोई भी ज्यादा अरसे तक हुकूमत ना कर सका। तारीख बताती है कि अगले 4 सालों में फारस में 10 से ज्यादा बादशाह बदले, कोई चंद महीने तो कोई चंद दिन ही हुक्मरान रहा। शाही खानदान की बर्बादी और दाखिली साजिशों की वजह से सल्तनत अंदर से कमजोर होती गई। दरबारियों और हुकूमती अहदेदारों के दरमियान इख्तिलाफात ने सल्तनत को मजीद जवाल पजीर कर दिया। फौज में बगावतें होने लगीं, सूबे मराकिज से अलग होने लगे, खजाना खाली हो गया। लिहाजा यहाँ से एक और दिलचस्प मोड़ का आगाज हुआ। फारस की उस दाखिली कशमकश का फायदा उठाते हुए इर्द गिर्द के इलाके के कबाइल और दुश्मन फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। रोमियो ने भी मौका देखकर हमले किए और अपने खोए हुए इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। उस दौरान मुसलमानों की क़यादत ने भी इन हालात को बगौर देखा और अपनी जंग हिकमत अमली तरतीब दी। ये दौर मुसलमानों की जबरदस्त हिकमत अमली और अल्लाह पर पुख्ता यकीन का दौर था। मुसलमान अपनी कलील तादाद और महदूद वसाइल के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे थे। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत ने बैरूनी फतूहात का आगाज किया। इसी सिलसिले की सबसे बड़ी मुहिम ईरान के खिलाफ थी। ईरान अंदरूनी खलफशार का शिकार था, जबकि मुसलमान जजीरतुल अरब में मुत्तहिद हो चुके थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फारस के जेर असर इराक पर हमला करने का फैसला किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार फारस की सरहदों की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी तारीख के अजीम तरीन जर्नैल थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा जंगें लड़ी और कभी शिकस्त नहीं खाई। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी क़यादत में फारस की सरहदों पर मुहिम्मात का आगाज किया। उनकी जंगी हिकमत अमली निहायत हैरत अंगेज और मौसर होती थी। वो एक ऐसे सिपह सालार थे जो निहायत फुर्ती और जहानत से अपनी फौज की रहनुमाई करते थे। वो रात की तारीकी में हमले करते, दुश्मन को हैरान कर देते और बड़ी चालाकी से फतह हासिल करते। उनकी सबसे पहली बड़ी कामयाबी काज़मा के इलाके की फतह थी, जो उस फारस का हिस्सा था। उस फतह ने फारस की सल्तनत को खबरदार कर दिया कि मुसलमान कोई आम मुखालिफ नहीं है, बल्कि उनके हौसले और जंगी हिकमत अमली बेमिसाल है। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमानों ने सिर्फ 1 साल के अंदर 11 बड़ी जंगों में कामयाबियां हासिल की। जंग ज़ातुल सलासिल, जंग मज़ार, जंग वलजा, जंग उलीस, जंग अगमेशिया, जंग अमगेशिया, जंग हेरा और दीगर कई जंगों में मुसलमानों ने शानदार फतूहात हासिल की। उन फतूहात ने फारस की सल्तनतों को मजीद कमजोर कर दिया और उन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया कि आखिर ये मुट्ठी भर अरब मुसलमान इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे शिकस्त दे रहे हैं। फरात के किनारे छोटे बड़े कई शहर मुसलमानों की फतूहात की गवाही देने लगे और ये कामयाबियां न सिर्फ मुसलमानों की जंगी ताकत का मजहर थीं, बल्कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस पेशगोई की तस्दीक भी कर रही थीं कि खुसरो परवेज की सल्तनत टुकड़ों में बढ़ जाएगी। फारस के लोग जो कभी अपनी अजीम सल्तनत के गुरूर में मुब्तला थे, अब मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और फतूहात से लरजने लगे थे। फारसी जर्नैल समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उनके पास बड़ी फौजें थीं, बेहतर हथियार थे, मगर फिर भी वो शिकस्त खा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि मुसलमानों के पास ईमान की ताकत थी, वो अल्लाह की राह में लड़ रहे थे और शहादत को खुशामदीद कहते थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी था और अब वक्त आ गया था कि उस बड़ी और फैसला कुन जंग का, जिसे तारीख में जंग कादसिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो जंग थी जिसने फारस की उस अजीम उस शान सल्तनत को
घुटनों पर ला खड़ा किया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमानों ने फैसला किया कि फारस के दारुल हुकूमत मदाइन को फतह करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाए। उस मुहिम की क़यादत हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु को सौंपी गई, जो एक माहिर जंगी कायद और निडर सिपह सालार थे। हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह अन्हु अशरा मुबश्शिरा में से थे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास दुआओं से नवाजे गए थे। कादसिया का मैदान वो मकाम था जहां मुसलमान और फारस की फौजें आमने सामने हुई। फारसी फौज की तादाद 1,20,000 थी, जबकि मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000 थी। फौज की तादाद मुसलमानों से ज्यादा थी और फारस की फौज में जंगी हाथियों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जो उस वक्त एक खौफनाक हथियार तस्वुर किए जाते थे। फारसियों के पास 33 जंगी हाथी थे जिन पर लोहे के जर्रे बख्तर पहनाए गए थे। फारसी फौज की क़यादत रुस्तुम फर्रुखज़ादा कर रहा था, जो एक तजर्बेकार जर्नैल था। प्यारे दोस्तों, जंग के आगाज में फारसी फौज ने अपने हाथियों के जरिए मुसलमानों पर शदीद हमला किया, जिससे मुसलमानों की सफों में अफरा तफरी मच गई। हाथियों को देखकर मुसलमानों के घोड़े बिदक गए और फौज में बेचैनी फैल गई। लेकिन यही वो लम्हा था जब मुसलमानों के गैर मुतज़लज़ल ईमान और क़यादत ने उन्हें संभाल दिया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौज को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। मुसलमान सिपाहियों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए हाथियों पर हमले किए। उन्होंने हाथियों की सूंडें काट डाली, उनकी आंखों में तीर मारे और बिलाखिर उन्हें काबू कर लिया। इस मौके पर मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और फैसला कुन तौर पर जंग का पासा पलट दिया। जंग 4 दिन तक जारी रही। हर दिन सख्त लड़ाई हुई। चौथे दिन जब रुस्तुम को कत्ल कर दिया गया तो फारसी फौज का हौसला टूट गया और वो भागने लगा। मुसलमानों ने न सिर्फ मैदान जंग को फतह कर लिया, बल्कि फारस की उस अजीम सल्तनत का जवाल भी यकीनी बना दिया। जंग कादसिया के बाद मुसलमानों ने मदाइन को फतह किया, जो फारस का दारुल हुकूमत था। जंग ज़ातुल सलासुल, जंग उलीस और हीरा की फतह मुसलमानों की इब्तिदाई फतूहात थीं। फिर खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जंग कादसिया लड़ी गई। ये एक फैसला कुन मार्का था। एक तरफ ताकतवर ईरानी फौज और दूसरी तरफ 30,000 मुसलमान मुजाहिदीन। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने ऐसी शुजाअत दिखाई कि ईरानी फौज भागने पर मजबूर हो गई। बिलाखिर ईरानी सिपह सलार रुस्तुम को नहर में गिराकर हलाक कर दिया गया। जंग कादसिया के बाद ईरान मुकम्मल तौर पर इस्लामी हुकूमत के तहत आ गया। फिर जंग नहामद लड़ी गई, जिसे फतहुल फुतूह कहा जाता है। इस जंग ने फारसी ताकत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोई की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। खुसरो परवेज की सल्तनत, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत को फाड़ने की जुर्रत की थी, टुकड़ों में बट चुकी थी और मुसलमानों ने अल्लाह की नुसरत से एक बड़ी फतह हासिल की। और उस अजीम फतह की दास्तान हमें याद दिलाती है कि ईमान की ताकत और सच्ची क़यादत नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। फारस की वो अजीम सल्तनत जो सदियों से दुनिया पर छाई हुई थी, चंद सालों में खत्म हो गई। नाज़रीन, आज 1400 साल बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पेशगोई कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और मेरा दीन उसकी सल्तनत से भी आगे फैल जाएगा, हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। ये इस्लाम की सदाकत और नबूवत मोहम्मदी की एक रोशन दलील है। आज इस्लाम दुनिया के हर खित्ते में फैल चुका है। फारस की वो सल्तनत जो चीन से लेकर अरब तक फैली थी, खत्म हो गई, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के दौर में फरवरी 2026 में हम देख रहे हैं कि ईरान में एक बार फिर वो हालात पैदा हो रहे हैं जिनका जिक्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में फरमाया था। हाल ही में आपने ईरान में देखा होगा कि एहतजाज के नाम पर वहाँ कुरान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मसाजिद को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उन्हें आग की नज़र किया जा रहा है। एक मुसलमान तो कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर ये आखिर कौन लोग हैं, इनकी हकीकत क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही मुस्लिम में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हुए फरमाया कि इस्फहान के यहूदियों में से 70,000 लोग दज्जाल के पैरोकार होंगे, यानी उसे सपोर्ट करने निकलेंगे। इस्फहान ईरान का एक मशहूर और तारीखी शहर है। इसके अलावा आपने ये भी फरमाया कि ये वो यहूदी होंगे जो बज़ाहिर अपने आप को ईरानी जाहिर करेंगे। आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बता दिया था कि ईरान के बारे में कि ईरान के इस्फहान से 70,000 लोग यहूदी जो दज्जाल के साथ जाकर शामिल हो जाएंगे। इस हदीस में बताया जाता है कि ये लोग दज्जाल की इब्तिदाई यानी शुरुआती फौज का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। ये कितनी वाज़ेह निशानी है, आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जो ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, अपने आप को मुसलमान बताकर मसाजिद नजर आतिश
कर रहे हैं, कुरान को नजर आतिश कर रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं जो दज्जाल के साथ शामिल होंगे? तो इसका जवाब यह है कि अभी दज्जाल आने में थोड़ा वक्त बाकी है। ये वो जमाना देख पाएंगे या नहीं, लेकिन हाँ, इनकी नस्लें जरूर होंगी जो दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगी। अभी ये समझो एक माहौल बनाया जा रहा है। दज्जाल के आने में अभी वक्त बाकी है, इससे पहले उसके आने की तैयारियां की जा रही हैं। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, लोग निजात के दिन के बारे में पूछते हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वो दिन कौन सा होगा? तो आपने फरमाया, जब आखिरी वक्त का बड़ा मुनाफिक यानी दज्जाल जबल हबशी की चोटी पर चढ़ेगा और अपने साथियों से मदीने की तरफ इशारा करके कहेगा, क्या तुम ये सफेद महल देख रहे हो? यही अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा तो वो सिर्फ इसलिए रुकेगा ताकि एक तलवार लिए फरिश्ते को वहां छोड़ सके। उसके बाद वो अलजर्फ नामी बंजर जमीन पर डेरा डालेगा। अहादीस की रोशनी में है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो मदीना के पास मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर कयाम करेगा जिसे जबल हबशी कहा जाता है। आज भी ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। हैरत की बात यह कि इसी पहाड़ पर सऊदी हुकूमत ने एक सफेद महल बनवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जाता है। कहा जाता है कि यह महल दज्जाल के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि जब वो मदीना पर हमला करने आएगा तो यहीं ठहरेगा। जब उस महल की तामीर शुरू हुई थी तो कई मजहबी रहनुमा और बड़े अफसर उसके खिलाफ हो गए थे। उन्होंने मुतालबे किया था कि या तो इस महल की तामीर रोक दी जाए या फिर इसे किसी और जगह बनाया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और ये महल बनकर तैयार हो गया। अजीब बात यह कि इसकी तामीर की कोई तारीख और पूरी मालूमात कभी सामने नहीं आ सकी। ये महल बनने के बाद से ही वीरान पड़ा है। सिर्फ एक ही रास्ता इसकी तरफ जाता है जो बंद है। कोई भी आम आदमी इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीपैड है और अगर ऊपर से देखा जाए तो ये मुसल्लसी शक्ल का है जिसमें अजीबोगरीब दज्जाली निशानात नजर आते हैं। ये रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन दिखाई देता है और इसमें हर जदीद सहूलत मौजूद है। अब सवाल यह है कि जब इसमें कोई आबाद नहीं है, कोई वजीर या हुकूमत का बड़ा आदमी नहीं रहता, कोई मीटिंग या तकरीब भी यहाँ नहीं होती, तो फिर इसे क्यों बनवाया गया? इलाहाबाजी इसराइल में बड़े पैमाने पर गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं। वहां की जमीन पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ये दरख्त उगाए जा रहे हैं और ये काम कोई मामूली किसान नहीं बल्कि बड़ी बड़ी तंजीमें और इदारे कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर यहूदी इस दरख्त को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आखिरी जमाने में जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बड़ी जंग होगी तो उस वक्त यहूदी अलग अलग जगहों पर छुपेंगे। वो पत्थरों के पीछे छुपेंगे, दूसरे दरख्तों के साए में पनाह लेंगे, लेकिन कायनात की सब चीजें उनका राज खोल देंगी। हदीस के अल्फाज हैं कि वो दरख्त और पत्थर पुकार उठेंगे कि ऐ मुसलमान, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ इसे पकड़ लो। लेकिन उस वक्त एक दरख्त होगा जो खामोश रहेगा और वो दरख्त यही गरकत का दरख्त है। यानी गौर कीजिए कि दुनिया के तमाम दरख्त और पत्थर यूं बोल उठेंगे मगर गरकत नहीं बोलेगा, क्योंकि हदीस में इसे यहूदियों का दरख्त कहा गया है। आज इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने मशवरा दिया है कि हर यहूदी के घर के बाहर गरकत का दरख्त लगाया जाए, लेकिन लिहाजा नेतन्याहू के इस बयान के बाद इस्राएली हुकूमत ने गरकत के दरख्त लगाने के लिए बाकायदा मंसूबे शुरू किए हैं। यहाँ तक कि जो लोग अपने घरों के बाहर गरकत लगाते हैं उन्हें हुकूमत इनाम देती है और उसका मकसद सिर्फ सब्जा बढ़ाना या माहौल की हिफाजत नहीं बताया जाता, बल्कि असल मकसद ये जताना है कि दरख्त उन्हें आने वाले वक्त की तबाही से बचाएगा। यानी वो तबाही जिसका जिक्र मुसलमानों की अहादीस में किया गया है। यानी वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और अपने घरों को गरकत के दरख्तों से ढक रहे हैं। दज्जाल के आने से पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंगें होंगी। उसका ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा। वो बड़ी तेजी से दुनिया घूमेगा, हर जगह तबाही मचाएगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। अहादीस में दज्जाल को गंदुमी रंग, मजबूत और ताकतवर नौजवान बताया गया है। उसका सीना चौड़ा होगा, बाल घुंघरियाले होंगे, उसकी पेशानी पर कुछ अल्फाज साफ लिखे होंगे। वो एक आंख से अंधा होगा। शुरू में वो नबूवत का दावा करेगा, फिर खुदा होने का दावा करेगा। वो अल्लाह की इजाजत से मुर्दों को जिंदा करके लोगों से कहेगा कि मैं ही खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। वो दज्जाल को बाबे लुद नामी जगह पर कत्ल कर देंगे। इसी तरह इस बड़े फितने का खात्मा हो जाएगा। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि इस्लाम की निशानियां वक्त गुजरने के साथ साथ एक एक करके पूरी हो रही हैं। हमें चाहिए कि इन बातों को सिर्फ एक कहानी या इत्तफाक ना समझें, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने का जरिया बनाएं, क्योंकि जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान कर दी थीं, वो आज हकीकत के रूप में दुनिया के सामने आ रही हैं। प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ हमें याद दिलाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशगोइयां महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से दी गई वही थे जो एक एक करके पूरी हो रही हैं। खुसरो परवेज की सल्तनत का टुकड़े टुकड़े होना, फारस की फतह, इस्लाम का फैलाव और आज के दौर में ईरान में होने वाले वाक़यात, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल थे। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनाएं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है, ये सब अल्लाह की मशीयत के तहत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इससे आगाह कर दिया है। ये तारीख हमें सबक देती है कि गुरूर और तकब्बुर का अंजाम क्या होता है और ईमान की सच्चाई की ताकत कितनी अजीम है। आज भी दुनिया में कई ताकतें ऐसी हैं जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि हक की फतह यकीनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करने वाला है, चाहे काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें फितनों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए और हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना देखने की सादत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।